Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today do we deal with the binary operator overloading, okay? C++ template. For example, we have binary operator overloading. Like if we have two integer variables, int a and b. Now if I do like this a plus b. Now this plus operator works with the integers. It's already overloaded. It works with the floats and all. But I want it to work with two classes. Now classes are user defined. We don't know what data type they have, what members they have. Maybe they have ABC. Other guy also have ABC, maybe for example, and I want to add them together. Okay. So that means इसका A इसके A के साथ add होना चाहिए, इसका B इसके B के साथ, इसका C इसका, because we don't know what variables are there. It is up to the user. So compiler can't give you the overloading version of this plus for your class. उसको नहीं पता है ना कि आपने क्या रखा उसमें. So it is your job to overload it. That means I want to use this plus operator with the classes. For example, I have a class. Okay, maybe I call it one. So this is the class. Now I have in public one constructor firstly. Okay, maybe a default constructor. Okay, default means not unparameterized constructor. For example, in here main firstly, I am creating of this variable one three objects. Say ob1, ob2, and ob3, or three objects. Now ob1 I want to initialize something. So I for that I may need some getters and setters methods, or I use a constructor, parameter constructor to initialize the values. So if I say ob1 and I equals to 1, and I'm putting some values to it, say 2 and 4, and ob2 equals to constructor name 1, and send it some values, say 6 and 8. Now, will this constructor suffice this? No. Why? Because this is unparameterized. This default constructor can be used for these guys. Okay. Now I am here creating the ob1 and putting up the constructor with 2, 4, to sending it two variables. So that means if I want it, I will just copy this out. I will create a parameterized constructor. Copy, Control V. Okay. And I'm passing it two variables. Say first x, comma int y. And therefore that means this class should have some variables. Say in public, it should be in private, not in public. Okay. Say int a comma b. I got a couple of variables here. So you could have two variables, three variables, four, whatever it is. But what my job is that plus should work with my user-defined class. Whatever the variables there are, it should add accordingly. इसका a इसके a के साथ, इसका b इसके b के साथ. और net में मेरे को जैसे मैं यहाँ पे ob3 कहूँगा, ob3 equals to ob1 plus ob2. Now you see, this plus should work with these objects now. But it can't happen unless you don't overload it. You don't do it yourself. Because compiler को कहाँ पता है कि ob1 के पास क्या क्या चीज है, ob2 के पास क्या क्या चीज है तो ये दोनों one class के ही objects, because we need them to have the same variables, right? That's why I created only one class. Okay, and in the one class I have three reference variables. In ob1 we will send 2 and 4, and ob2 will have 6 and 8. In ob3, ob1, ob2, or ob3, all of them have a and b variables. And when I say ob1 plus ob2, this plus should add ob1 ka a with the ob2's a, ob1's b with the ob2's b. Then that means in the ob3, the a will be equal to 8 and b will be equal to 12. But this won't happen because this plus is not overloaded by default unless we don't overload. Okay, so firstly let me assign these variables here. I am creating ob1 and calling the constructor this. Okay,
and I'm setting 2 and 4 to it. So that means I will catch this 2 into x and 4 into y, and then I will assign this x to a and y to ये x is a को जाएगा, ये y is b को जाएगा. We use the initialization list maybe, and we will say what x. Should I say x is equal to a or a is equal to x? Comma b equals to y. Okay. Now I'm saying like this. Let us see. Let us have one method here. Okay. Maybe I call it show method. White show. It shows me what is inside the data, and I'm not putting up anything. That means I am going to outside. I'm going to write outside. There should be the terminator for the class. Don't forget it. Yes, I have to put a scope between white and show. I have to use what? Scope position operator and class name. Scope position operator, then method name, show, and here it will show me what is inside the A and what's inside the. So I will simply see out. Huh? One show. नजर उड़ रहा है दूर है हमारे एलिमेंट वहां से backslash n, huh? What should a equals to a and b equals to b. Maybe I will use the and okay. And right. So if I first do here before doing this, because this will not work, because अगर मैं ये करूँगा ये बोलेगा भाई क्या ये प्लस का कैसे करोगे इनको, ठीक है ना? इसको टर्मिनेटर नहीं प्लस टर्मिनेटर क्या समझ में ये प्लस कैसे कर पाएगा ये इनको नहीं कर पाएगा ना ये कैसे कर पाएगा क्योंकि or plus is not overloaded for this. Let us see what is the error. No match for the operator because we need to have an operator, okay, to overload this operator method, which is not defined yet. Let me close this and let me see what is in OB1. So I say OB1 dot show. Then I say OB2 dot show. Right? Maybe I before this I give some message here. C out. Backslash n OB1 data. Okay. Copy. Then here I say control V, OB2 data, and here I say control V. That should be OB3 data, which is not yet done. OB3 data. OB2 data, and maybe I call here OB3 show because OB1, OB2, OB3 all are the members of whom? All are the members of whom? They are all the members of one class. Sorry, I mean objects of one class. Okay, so whatever the one class has, all of them will have that. So show method is for everybody. So if I give it a go, it has to work. The OB1 data is 2 and 4, OB2 data is 6 and 8, and OB3 has junk values. It's a garbage value because it's uninitialized. Yeah. OB3 is not initialized, isn't it? So we initialized only OB1 and OB2. Now we want to create in OB3 what? Whatever is in OB1 and whatever is OB2. That means I need to overload this plus operator. Now this is a binary overloading. Binary. Because plus is working on two guys now. Last time we did for like plus plus or minus minus. Okay, increment, decrement operator and all. That was a unit. It was working only on one operator. Here it is working on two guys. Plus is working on two objects now. On the left side is OB1, on the right side is OB, and also it is returning something which is being assigned to whom? OB3. You understand? So that means this also returns something. You getting my point? So that means if I write an operator function here,
Okay, and what is it returning? यार इतना लेट क्यों? Okay. You have to come at time, right? Now look here, look here. This is recorded also. Okay, but see here, what we are doing. We are trying to overload binary operator. Okay, that means I have a class. Look here, I have a class. This is my class, which is having in public one default constructor and one parameterized constructor and couple of variables here. In private, couple of variables A and B. So likewise, I say, for example, I have A equals to 2, B equals to 6, and I say C equals to A plus B. Now this plus works as a binary. It adds A and B and returns the answer to C. This is what this plus does, right? And this is being written in the compiler. This is already predefined. We don't have to work for this. Even though these are floating point numbers, this will work fine because that means overloaded version of this plus will be written there, which is working for floats also. You was working for integers, you working for floats and all, right? But now I want of this class 1, so I have couple of variables here. If you see 3 variables here of type 1, OB1, OB2, and OB. These are 3 reference variables of class 1. Okay, so I got 3 objects. Now I am saying OB3 is equal to OB1 plus OB. Now this plus has to work with the object 1 and object 2. But right now, यहाँ पे A में A की वैल्यू था, B में A की वैल्यू था, तो उसको पता ऐड कर रहा है. यहाँ जो OB1 है, यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स रखे हैं. मे बी आपने 3 रखे, मे बी आपने 4 रखे, मे बी आपने 6 रखे. How does compiler will not be able to judge that, right? It is up to the user. So that means we have a job to overload this plus, so that it will work on the variables of OB1 and on the variables of OB and correspondingly add them. यानी कि इसका A इसके A के साथ ऐड करेगा, इसका B इसके B के साथ, इसका C इसके C के साथ, इसका D इसके D के साथ, and so on, जितने वेरिएबल्स है उतना. और फिर रिटर्न करके ऐड जो होगा, it will return the object. You know what? It will return that object which is being added and give back to what? OB3. You understand? It has to also return the object. You understand? Then you can understand this. You can develop this operator function. That it not only has to add OB1 A and OB2's A, but also has to return. पहली बात, ये कहाँ पे वो ऐड करे, कैसे ऐड करे? क्योंकि वो फिर रिटर्न भी करना है, और जो रिटर्न होगा वो OB3 में जाएगा, और OB3 चूंकि ऑब्जेक्ट है खुद, तो उसको भी ऑब्जेक्ट ही राइट साइड होना चाहिए. So it will be like this. I will give the information. OB3 is equal to OB4. If it's like this, whatever is OB4 having, that will be assigned to OB3. You can do this like, right? So this all should evaluate to, for example, OB4 or some temporary object. Okay? This should evaluate to OB4. Exactly. So we can take here some temporary object. So उस temporary वो भी इसी class का, किसका? 1 का. यानी कि वो अगर मैं temporary object बनाऊंगा कोई, उसका भी A और B होगा अपना. तो temp के A में डालूंगा मैं OB1 का A plus OB2 का A. ठीक है ना? इसका A और इसका A, इनको ऐड करके डालूंगा किसके में? temp के A में. इसी तरीके से OB का B, OB1 का B और OB2 डॉट B, उनको ऐड करूंगा, वो डालूंगा किसमें? temp के B में, और उस temp को क्या करूंगा? रिटर्न. जो जब रिटर्न हो जाएगा वो इधर आ जाएगा. बात समझ आ रही है? देखिए. Okay. That means if I want to do this job, OB3 is equal to OB1 plus OB2, I have to write an operator function, right? Yes. So I say here, but this operator has a return type wide. What should it return? Object. It should return the object, the same class. It should return the object, same class. So it should return of type 1. Operator. Which one is plus? And we have here 1, also the 1 variable. Why so? I will tell you why. Because we are working with the 2 guys. We're working with what? 2 guys. क्योंकि जब मुझे यहाँ पे ध्यान दे,
You should develop it yourself, na? Understand the way that you develop it yourself. I am saying OB3 equals to OB1 plus OB2. Then the internally what I have to do is, जो OB1 का A है, OB1 dot A, उसको प्लस करना है OB2 dot A. वो मैं डालूंगा temp dot A. temp dot ये temp तो मैं इस ऑपरेटर में खड़ा करूंगा ये वेरिएबल, फिर उसको रिटर्न करूंगा लास्ट में temp को, ठीक है ना? इस प्लस जब मैंने यहाँ पे है तो कोई तो इसको कॉल करेगा ना, इस ऑपरेटर को तो कोई कॉल करेगा ना, कॉल कर रहा है ये OB1 जो लेफ्ट साइड, सॉरी ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये OB1 कॉल कर रहा है, ठीक है? तो जब मैं OB1 इसको कॉल कर रहा है, यानी कि इस क्लास में जो मेथड है, चाहे शो है, अगर शो था फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा OB1 डॉट शो, किसका डेटा दिखा, है ना? लेट मी क्लियर दिस वेरी सिंपल। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है OB1 डॉट शो, तो OB1 को 2 और 4 है ना असाइन यूजिंग द पैरामीटर कंस्ट्रक्ट, और OB2 को असाइन है 6 एंड यूजिंग दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट। उसने अपना 6 x में डाला और ये 8 गया y में, फिर a में गया x, b में गया y। या जब मैं शो कर रहा हूं, मैंने कहा OB1 डॉट शो, देखिए यहाँ पे मैंने कहा OB1 डॉट शो, एरर दिखाएगा ना इसमें, बंद करेंगे। देखिए जब मैंने कहा OB1 डॉट शो, यहाँ पे मैं गया, मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, सी आउट OB1 डॉट डेटा, ठीक है, OB1, फिर ये OB1 डॉट शो जब किया, उसने दिखाया A में 2 है, B में 4 है, क्योंकि OB1 को मैंने 2 और 4 दिखाया। इसने क्यों 2 ही 4 दिखाया, इसने 6 और 8 क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 की है। जब ऑब्जेक्ट 1 का हम कॉल करेंगे वो अपना A और B देगा, वो दूसरे का नहीं दे सकता, ठीक है? बस मैं जिस तरह से जब मैंने OB2 का कॉल किया, उसने अपना A और B दिया, अगर मैं वहां पे करना चाहता हूँ OB1 का, उस तरह से तो उसको कॉन्टेक्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि OB2 अलग ऑब्जेक्ट है, OB1 अलग ऑब्जेक्ट है, OB1 OB2 रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब मैं OB1 को कॉल कर रहा हूँ, अपने A में B में देख रहा है 2 4 है, ये दिख रहा है अपने में 6 एंड 8 है, यहां से मैं इधर नहीं जा सकता। लेकिन जब मुझे ऐड करना है, जब मुझे इसका भी A चाहिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करना चाहिए, एक रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करना चाहिए, मुझे इसको भी एक्सेस होनी चाहिए, इसको भी एक्सेस, तब जाके मैं इसका A लाऊंगा, इसका भी A लाऊंगा ना, उनको ऐड करूंगा। बस में आ रही है? तो उस सूरत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जब प्लस को यहाँ पे, पहले आप खोलते हैं इसको, ये जो ऑपरेटर यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल, पहले मैं लिखूंगा नीचे, अब कहाँ पे, कॉपी आउटसाइड क्लास लिख रहा हूँ, कंट्रोल V। अब यहाँ पे बीच में क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास नेम इसको भेजना ऑपरेटर बस, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं वो टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ ऑफ टाइप, टेम्परेरी रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, वो भी 1 का होगा ना। देखिए ये जो ये एक मेंबर मेथड है ना, क्या है, मुझे इसको भी रेफरेंस चाहिए, इसका भी रेफरेंस चाहिए, बात में आ रही है? सो जिसने कॉल की, वो अपना A and B तो आराम से एक्सेस कर सकता है ना? जो जिसने कॉल इस क्लास, जैसे OB1 डॉट शो ने कॉल की थी अपने शो को, तो वो अपने को तो कॉल कर सकता है ना, ठीक है ना? अब अगर दूसरे को भी कॉल करनी है तो उसका भी रेफरेंस चाहिए। तो जो लेफ्ट साइड प्लस के है, जो लेफ्ट साइड प्लस के है, ये वाला यहाँ OB1 जो है, ये इसकी कॉल है, ये यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस वक्त A प्रिंट करूंगा या कुछ करूंगा, वो किसका A होगा, OB1 का, लेकिन OB2 का भी तो चाहिए, इसलिए मैं जो OB2 है वो पास होगा एज ए पैरामीटर, वो पास होगा एज ए पैरामीटर, मैं वो लिखता हूं उसको, ठीक है? देखिए अगर मैं यहाँ पे A कहूंगा, सीधे A, डायरेक्ट A, ये किसका A है, ये ऑब्जेक्ट 1 का A है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 का A मेरे को चाहिए तो O डॉट A कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेफरेंस वेरिएबल है O, वो किस में है, पैरामीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 2 है वो गया इस इधर इस O में, वो किस में गया, ठीक है?
अगर मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल खड़ा किया टेम्प, क्या वेरिएबल खड़ा किया ऑफ टाइप दिस, तो इस टेम्प को भी अपना ए एंड बी होगा ना, बिकॉज दिस टेम्प इज अगेन ऑफ द सेम टाइप, जो भी इस वन के पास है वो सारा इस टेम्प के पास है ना, जो भी इस क्लास के पास है वो इस टेम्प, क्योंकि टेम्प इज अ वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, इट्स अगेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, ठीक है ना। सो अगर मैं कहूंगा यहाँ पे टेम्प डॉट ए, सॉरी कोई कैपिटल कहां से आ गया, टेम्प डॉट इक्वल्स टू a plus o dot a, what do you say? ऑब्जेक्ट 1 का है, ऑब्जेक्ट 2 का है। एग्जैक्टली a जो डायरेक्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि इसको कॉल मारी है ऑब्जेक्ट 1, ये ऑपरेटर को कॉल मारी किसने, तो इसलिए वो अपना a उसका डायरेक्ट उसको एक्सेस, उसके लिए कोई वेरिएबल जरूरत नहीं है, वो अपना a डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट 2 का एक भी चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट 2 गया किधर, पैरामीटर में, इस 1 o में गया, ठीक है। सो उसका o डॉट a कहना पड़ेगा, वो डायरेक्ट a नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उसको रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करना पड़ेगा o डॉट, बिकॉज़ o इज एज गुड एज सेइंग ob2, ठीक है, o इज एज गुड एज सेइंग व्हाट, यहाँ पे ये ob2 जो है पैरामीटर, वो हो गया ना o में ऑफ टाइप 1, सो o डॉट इज दिस, सिमिलरली आई विल ऐड द b, हाउ विल आई बताइए आप, temp डॉट b इज इक्वल टू, हाँ जी, temp डॉट b इक्वल्स टू b किसका है ये, ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 2 का कैसे लूंगा, o डॉट, अब जो ये टेम्प है, ठीक है ना, पता नहीं कहां से आ रहा है, अब जो ये टेम्प है, अब जो ये टेम्प के पास ऑब्जेक्ट 1 का a प्लस ऑब्जेक्ट 2 का a, उनको ऐड करके अपना a बन गया, और उसके b में उन दोनों का ऐड बन गया, उन दोनों के b का ऐड बन गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको रिटर्न टेम्प, इसलिए तो मैंने बोला यहाँ पे कि ये रिटर्न टाइप इसका 1 है, सेम क्लास, इसका डेटा टाइप जो है वो टेम्प, तो जो रिटर्न टाइप आगे आ जाएगा यहाँ पे, वो कहाँ पे आ जाएगा, ob3 में, और ob3 अपना डेटा दिखाएगा, देखिए ob3 डेटा a में 8, 6 + 2 8 और 8 + 4 12, बात समझ रहे हैं, so this is how we what overload binary object। अब अगर मैं यही फ्रंट फंक्शन जो बता रहे थे, तो फ्रंट फंक्शन से करेंगे, किससे, उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो यही है, मैं एक कॉपी करूंगा, टेलीग्राम में डालेंगे, वो कहाँ वो आज बुरहान, मैंने कॉल करी उसको, कॉल ही नहीं हुआ, कभी थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए सुने बात यहाँ पे, अब जरा इसको अपना दिमाग लगाओ कि जो मैंने फ्रेंड फंक्शन नहीं की, मैंने सीधे फंक्शन मेंबर फंक्शन, यानी कि ऑपरेटर मैंने मेंबर फंक्शन बनाई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये जो ये 1 क्लास है उसकी मेथड। अब अगर मैं इसको फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फ्रेंड फंक्शन मींस आउटसाइड फंक्शन, इट इज नॉट द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन में ये फायदा होता था कि जिसने इसको कॉल मारी उसका ए एंड बी में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, जिसने कॉल मारी उसका ए और उसका बी में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जनाब जो कि फ्रेंड फंक्शन है वो बाहर वाली फंक्शन, उसमें किसी का ए किसी का बी नहीं जा सकता जब तक रेफरेंस वेरिएबल नहीं हो। तो यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट 2 था उसको भेजना पड़ा मुझे इसमें, और उसका ए और बी हमें ओ डॉट ए ओ डॉट बी करके मिल गया, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 का खुद ही मिल गया ए एंड बी डायरेक्ट, बिकॉज मेंबर फंक्शन उसकी थी ना, उसी की कॉल थी, तो अपना वो ए बी डायरेक्ट कर सकता था। व्हाट अबाउट दिस फ्रंट फंक्शन, फ्रंट फंक्शन में न ob1 की फंक्शन है न ob2 की फंक्शन है, यानी कि जिस तरह ob2 को आपको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, इस तरह ऑब्जेक्ट 1 को भी चाहिए, इतनी ही फर्क है खाली, ठीक है ना, बाकी सेम है। यानी कि जो यहाँ पे 1 ऑपरेटर है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये फ्रेंड है, क्या है, FRIEND, ये फ्रेंड फंक्शन, यानी कि ये मेरी मेंबर फंक्शन, सो आई डोंट नीड टू राइट इट हियर लाइक दिस, ये स्कोप इज ऑपरेटर नाउ, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन, तो ये एक्सेस कर सकती है। जब मैंने कहा कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, वो प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होता है, रेफरेंस वेरिएबल अगर नहीं है वो कैसे करेगी, लेकिन अगर रेफरेंस वेरिएबल है वो कर सकती है एक्सेस, ए को भी, उसका भी ए, इसका भी। लेकिन अब इस फ्रेंड फंक्शन को 2 क्लासेस को एक्सेस करना है, इसको ob1 का भी क्लास एक्सेस करना है, ob2 का भी क्लास एक्सेस करना है,
इसमें से इसका ए लाना है, इसमें से इसका भी ए लाना है, इसमें से इसका भी, एंड सो ऑन। टेम्प तो बहरहाल ऐसे ही है ही, तो खुद ही खड़ा होगा ना वहां पे, तो उसका अपना एबीएन होगा, उसके ए बी में उनका सम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या मैं ए को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ अब? ये किसका ए है? पता ही नहीं, क्योंकि क्योंकि ये जो ऑपरेटर फंक्शन है ये किसी क्लास की अब नहीं है, ये बाहर वाली है। जब तक आप इसको रेफरेंस वेरिएबल नहीं भेजोगे, तो इसलिए क्या करेंगे हम काम, हम इस फ्रेंड फंक्शन को दो रेफरेंस वेरिएबल क्या भेजेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा O1 और 1 टाइप O2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब क्या होगा जब आप इसको कॉल करोगे, यहाँ पे कॉल करोगे, ऑपरेटर देखिएगा भाई साहब, ऑपरेटर ऑपरेटर तो है, लेकिन ये अब मेंबर फंक्शन नहीं है, ये किसकी है? अब ये जो दोनों है OB1 और OB2 एज ए पैरामीटर पास इस मेथड, जब ये मेंबर फंक्शन थी उसमें OB1 जो था उसकी कॉल थी, वो अपने मेथड को कॉल कर रहा था, ठीक है, तो इसमें OB1 के जो ए एंड बी है वो डायरेक्ट एक्सेस हो रहे थे। लेकिन अब जाके जब ऑपरेटर फ्रंट फंक्शन है, तो कंपाइलर को पता है कि वास्तव में किसी की फंक्शन, मैं किसी का डायरेक्ट ए नहीं कर सकता, किसी को डायरेक्ट बी एक्सेस। सो इसमें OB1 और OB2 दोनों एज एन रेफरेंस वेरिएबल, एज एन पैरामीटर पास हुए, ठीक है। सो यानी कि इसमें और इसमें, अब अगर ये ए है, मैं इसका ए कह सकता हूँ, आई हैव से व्हाट O1 डॉट ए, इसको क्या कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, बस में आ रही है, O2 डॉट बी, और वो ये टेम्प में टेम्प रिटर्न करो, रिटर्न होके टेम्प आ जाएगा, वो घुसेगा OB3 में, टेम्प ने ऐड करके वो OB3 में घुसेगा, तो सेम प्रॉब्लम मसला है। हाँ बोले, आ गया बराबर परफेक्ट। लेकिन अब ये फ्रंट फंक्शन वाले क्या थी, इसको यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं, बाइनरी, और कहीं समझ, यहाँ से देर होगी ना, कॉलेज में देर हो जाती है, क्या उस टेलीग्राम का। अब लास्ट इसमें हम करेंगे, ठीक है, वो है कि अगर मुझे इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा। अब अगर मुझे इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन, जैसे मैं कहता हूँ सी आउट और सी इन करता हूँ, मैं चाहता हूँ अब सी आउट, मैंने ऑब्जेक्ट पे काम कर, मैं सी आउट करूंगा ए वेरिएबल, ठीक है, अब मैं कहता हूँ सी आउट करो OB1। अब जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है, इसको कहाँ पता है कि ऑब्जेक्ट वन में क्या क्या चीज है, वो तो आपने रखी है, कंपाइलर कहाँ बताऊँ, तो ये प्रीडिफाइन नहीं हो सकता, यू हैव टू डू इट। यानी कि इसमें अगर ए और बी है वेरिएबल, ए बी प्रिंट करके देगा, अगर इसमें ABC है ABC प्रिंट करके देगा, अगर ABCD है तो ABCD प्रिंट करके देगा, अगर इसमें फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रिंग्स हैं और ये है, तो वो प्रिंट करके देगा, सारा प्रिंट करके देगा जो भी इसमें, और इसमें नेम है और इसमें एज है, दो चीजें हैं, ये स्टूडेंट का क्लास है, इसमें नेम और एज है। अब ये मुझे प्रिंट करना देना चाहिए नेम और एज, है ना, जैसे सी आउट आप कहते कोई ए वेरिएबल है, ये सी आउट ए, तो उसका वेरिएबल देता है ना वो आउट। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो सी आउट वो फ्लोटिंग पॉइंट, मैं कह रहा हूँ सी आउट OB1, सी आउट बाय ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करके दे, तो वो सारा उसमें जो चीजें होंगी वो प्रिंट करके देना चाहिए। अब वो कंपाइलर कहाँ पता है कि आपने क्या रखा है उसमें, तो तेरी मर्जी थी, क्लास क्या बनाया तूने, इसलिए उसको ओवरलोड करने का भी जिम्मा किसका, आप, बस भाई। इसी तरह सीन, मेरे पास एक वेरिएबल है ए, मैं कहता हूँ सीन ए, अब मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक नेम है और एक एज है, मैं चाहता हूँ सीन करके सीन OB1 में डाल दूं चीजें, तो सी इन जब मैं कर रहा हूँ उसमें डालूंगा, तो वो सी इन बी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो इसका है वो आपको ओवरलोड करना पड़ेगा, ये खुद नहीं होगा, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने दो चीजें आपसे कही कि मेरे पास, फर्ज कीजिए मेरे पास एक पर्सन क्लास, ठीक है, मेरे पास एक क्लास पर्सन है,
सर इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है किसका? ये तो बड़ा ही है फोन। सर स्पेक्स का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है थोड़ा आगे आ जाओ, खिदमत पहुंचेगा स्क्रीन के साथ। उसमें करो स्क्रॉल हुआ है। सर फर्ज कीजिए इन द प्राइवेट आई गॉट स्ट्रिंग नेम एंड आई गॉट इंट एज। दो चीजें मेरे पास, ये रहा इसका पब्लिक और एक कंस्ट्रक्टर है ऑफ टाइप पर्सन। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे ये नेम में डाल रहा है फॉर एग्जांपल एम्प्टी और एज में डाल रहा है 0 स्टार्ट में। फिर मुझे इसमें असाइन करना है, but I have to assign using cin and cout. Cin and that should work with my this class. बस हमारे टर्मिनेटर क्यों बोलता हूँ मैं? It should work with the class. You understand? तो अब तो उसका मतलब है कि एक दो ऑपरेटर फंक्शन है, एक इंसर्शन ऑपरेटर के लिए, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना? यानी कि मैं जो कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मुझे ऐसा आना चाहिए कि मैं पहले कहूँगा सी आउट एंटर नेम एंड एज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई नेम एंड एज टू एंटर कर, ठीक है? ठीक, उसके बाद मैं कह रहा हूँ, ध्यान दे, मैं कह रहा हूँ सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द OB1। पहले मुझे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना चाहिए ना इसका, ऑफ टाइप पर्सन पी भी बनाना, ऑफ टाइप पर्सन पी। मैं कह रहा हूँ सी इन पी एंड देन आई से सी आउट एंड यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर पी। ठीक है, मैं सी इन कर रहा हूँ पी के अंदर, यानी कि मैं कीबोर्ड से ले रहा हूँ चीजें, वो डाल रहा हूँ किसमें? पी में। जब मैं करूंगा तो ये बोलेगा भाई साहब क्या बोल रहे हो, ये कैसे काम करेगा इसके लिए? पहले पर्सन में परेशान है, ठीक है ना? क्योंकि जो इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो आपके क्लासेस के लिए नहीं लिखे गए हैं। उसको कहाँ पता है आपकी क्या चीज है डाले, उसको कहाँ पता कि इसमें क्या क्या, इसमें नेम और एज है, तो कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको ओवरलोड करें। तो आप कैसे ओवरलोड करेंगे इसको? मेरे पास दो फंक्शंस होंगी, क्योंकि मैं जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पहले देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस स्ट्रिंग को पास कर रहा है, ठीक है, और वो सी आउट को दे रहा है, किसको? सी आउट, और सी आउट आउटपुट स्ट्रिंग को दे रहा है, इट गिव्स यू द आउटपुट स्ट्रिंग। तो सी आउट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग, ठीक है? यानी कि अगर जो जिस टाइप का सी आउट है उसी टाइप का जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो राइट से लेके ला रहा है। जैसे अभी हमने देखा OB3 इज इक्वल टू OB1 प्लस OB2। अब OB1 प्लस OB2 क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, लेकिन रिटर्न क्या हुआ, जिस किस्म का OB3 था तब जाके इज इक्वल कह सकते ना यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है वही जो सी आउट है, एंड दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। दैट्स व्हाट आउटपुट स्ट्रीम। सो दैट मींस कि जब मैं ऑपरेटर फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि जो वहां से मैं लाऊंगा वो सी आउट को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं यहाँ पे सी आउट पी, ठीक है? यानी कि जब ये देखेगा ये insertion operator with the P which is of type person, so it will try to find the operator method। लेकिन वो जो रिटर्न करके लाएगा वो सारा माल लाएगा किसका, जो P में है, P में नेम एंड एज है ना, वो लाएगा और रिटर्न करके देगा इस सी आउट को, और सी आउट उठा के देगा मॉनिटर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो सी आउट को नॉर्मली मिलता है वही मेरा P रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि काम तो बाकी वही हो रहा है ना, सी आउट तो वही कर रहा है ना। जैसे सी आउट मैं कहूंगा ए, एक ए वेरिएबल है सी आउट ए में फॉर एग्जांपल 4 था, अब वो 4 आ गया और वो सी आउट को मिलेगा और सी आउट देगा किसको? सो जो सी आउट काम करता था उसको वैसा ही मिलना चाहिए हमारे पी, जब मैं पी के साथ करूंगा।
अब मैं नॉर्मल वेरिएबल के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लास के साथ कर रहा हूँ, एंड दैट इज आउटपुट स्ट्रीम, दैट्स व्हाट। सो उसका मतलब है कि जब मैं इंसर्शन ऑपरेटर को करूंगा ओवरलोड, आई नीड रिटर्न टाइप ऑफ पोस्ट स्ट्रीम, output stream, ampersand, reference variable of that. Then I will say operator, okay? Operator code, insertion operator, ठीक है ना? वही तो ओवरलोड हो रहा है ना? और करके करना क्या चाहिए? ये P के अंदर जितना भी चीजें हैं वो उसको, तो इसको P का रेफरेंस चाहिए, ठीक है? और इसको दो रेफरेंस में देता हूँ, एक मैं ओ स्ट्रीम का देता हूँ, इसको ओ स्ट्रीम का बनाऊंगा मैं एम्परसेंड, से फॉर एग्जांपल आउट और पर्सन P, ये भी एम्परसेंड रेफरेंस वाला, ठीक है? देखिए मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, अभी क्लास के बाहर लिख रहा हूँ, लेकिन ये अगर ये फ्रेंड फंक्शन है, क्या है फ्रेंड फंक्शन, इसको फ्रेंड से ही करेंगे, नॉट this thing. Say I said this is a friend function. ठीक है? Now write this friend function here. You can use a member method or friend function. I will use a friend function. इसलिए मैं तो रेफरेंस दिया, अगर फ्रेंड फंक्शन नहीं होती तो फिर रेफरेंस की वैल्यू ओ स्ट्रीम एम्परसेंड ऑपरेटर, यानी कि ये जो ऑपरेटर मेथड है ये रिटर्न करेगा ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है? और मैं पास भी इसको कर रहा हूँ ओ स्ट्रीम, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ आउट, क्या कर रहा हूँ आउट, यानी कि जो सी आउट है, क्या है सी आउट, इसी का एक वेरिएबल टाइप है, जो सी आउट का टाइप है वही ये आउट है, तो आउट इज सेम एज दैट व्हाट सी आउट, इट्स लाइक सी द सेम टाइप बिकॉज़ इट्स ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम एंड p is of type person, so it's an alias of this p जो मैंने यहाँ पे भेजा है p, ठीक है? It will go into this. अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आउट के अंदर, इसके अंदर आउट डाल रहा हूँ मे बी आई फर्स्ट, जब भी कॉल होगा मैं सी आउट करूंगा सीधे, सी आउट द डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ठीक है? बैकस्लैश पहले मैं सी आउट करूंगा सीधे, ठीक है? ये मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर डालूं, लेकिन मैं अब इस आउट वेरिएबल में डालूंगा, पहले मैं लिखता हूँ बताऊंगा, मैं इस आउट वेरिएबल में डालूंगा बिकॉज आउट इज सेम एज सी आउट, ठीक है? इस आउट वेरिएबल में मैं डालूंगा, क्या डालूंगा बोलो, नेम इज इक्वल टू नेम, लेकिन किसका नेम, ये फ्रेंड फंक्शन है ना, ये किसका नेम है, तो डायरेक्ट नेम नहीं एक्सेस कर सकते बिकॉज ये फ्रेंड फंक्शन, p डॉट जिस पर्सन p का वेरी गुड, पर्सन p उसका जो है उसका नेम concatenate with age is equal to p dot age. अब ये p dot age, ये age is equal to p dot name, ये name is equal to किस में गया, आउट में गया, और मैं काम करूंगा यहाँ पे इस आउट को मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न आउट, ठीक है? जब इसको कॉल होगी, इस ऑपरेटर कॉल होगी, पहले ये एक मैसेज, सिंपल मैसेज होती है, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा इसको बाहर, जब मैं ये कर रहा हूँ ना, the data of object is बैकस्लैश आप डेटा देगा, सी आउट करेगा यहाँ पे p को, तो जहां जो ही सी आउट p होगा, ये p जो गया वो इसमें गया, और मैंने आउट बनाया ऑफ सेम टाइप ऑफ सी आउट, उस आउट में मैंने डाला नेम p डॉट नेम, और वो अभी किस में है, वो आउट में, ठीक है? ये आउटपुट स्ट्रीम टाइप बन गया, क्योंकि जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो आउटपुट स्ट्रीम होता है, ठीक है? और उसको मैंने रिटर्न किया, जिसने वहां पे टेम्प रिटर्न किया, अब वो आउट में वो सारी चीजें हैं ना जो आपकी क्लास के अंदर है, आउट रिप्रेजेंट जैसे टेम्प की तरह काम करे आप, एग्जैक्टली जिस तरह टेम्प हमने करवाए थे इससे पहले वैसे ही,
अब इस आउट में सारी चीजें आपको क्लास की जो भी आपको प्रिंट करना है, नेम, एज और भी कुछ है, रोल नंबर, शोल नंबर, वो सारा वो मैं डालूंगा आउट पर। वो इस आउट के पास सारा चीज आ गया ना, ये बकेट बन गया, बकेट बन गया जिसमें जो क्लास में था वो आ गया। अब वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वो किसको मिल रहा है? सी आउट को, और सी आउट कर रहा है नहीं जो जब अपने इंसर्शन ऑपरेटर में लगाया ना, इस इंसर्शन ऑपरेटर ने कॉलम मारी इसको, ठीक है, और पी गया इसमें, और जो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो किस पे गया? आउट बन गया आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। और मैं उसी आउट को रिटर्न भी करना चाहता हूँ, इसलिए आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न टाइप दी। मैं इसलिए ये आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न टाइप कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सी आउट है उसको आउटपुट स्ट्रीम ही आता है यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो सेम ही रखा। अब आउट के अंदर मैंने लोड किया वो सारी चीज जो क्लास के अंदर है, तो अब ये परेशान नहीं होगा कि मेरे पास क्लास में क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें आ गई। सो दिस विल इवेल्युएट टू लाइक आउट, यहाँ से आउट आ रहा है, वो आउट में वो सारी चीजें लोड होगी ना, वो किसको दे रहा है? सी आउट को, और सी आउट को अपना है ही, उसको पता है मेरे को क्या करना है। कंट्रोल जी करो ना, सी आउट को पता है कि वो मॉनिटर में छपा है, वो सारा चिपका देगा कहाँ पे? इसी तरीके से सी इन करना है, क्या करना है? लेकिन सी इन जो है इसमें इनपुट स्ट्रीम होता है, आई स्ट्रीम होता है। अब बोलो मेरे पास ऐसी फ्रंट फंक्शन होने वाली है, ठीक है, कॉपी, it will be of I stream type, I stream here, maybe I call it in now, not out, huh? पर्सन तो अपना P है। अब जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसे कॉपी करना, let me copy this, friend function है ना, friend I stream ampersand operator I stream this and this बताएंगे। Yeah, this has to be extraction operator, not the insertion operator, because this is the I stream operator. Now, whenever it meets the extraction operator, it will call this, because when you see it's no, oh, it's extraction operator with the person P, so it has to find some operator because you had to overload. So you have to go here, so it will go here, right? Okay. Anji, it will come here. It will come. Yes. And इसी तरीके जिसने आउट को उसने लोड कर दिया ना, इसी तरह से इन को करना। क्या बोला बताओगे? बताओ कैसे? P dot name, यानी कि ये कीबोर्ड से in because is of type input stream, okay? Yes, sir. It will work same way जैसे C in करता था काम, लेकिन अब क्या कर, मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ? मैं P dot name क्या डाल रहा हूँ? P dot name और sorry P dot age and I do what? Turn in. So in ने कीबोर्ड से लिया दो चीजें, क्या क्या? एक तो P dot name नेम और एज है, वो इन में है, आ गया ना, वो जो भी कीबोर्ड से हमने डाला वो इन के अंदर है, वो इन फिर किसको देगा? सी इन, दैट्स वो सेम काम करेगा जिससे कर रहा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं एंटर नेम एंड एज तो लिख चुका हूँ, आई थिंक शुड बोल डाउन। कहाँ पे? लेकिन इससे पहले भी कुछ एरर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक स्पेलिंग, अच्छा मैंने यहाँ पे फ्रेंड ही लिखा है ना, ये फ्रेंड ऊपर लिखना है ना, नीचे मत लिखना है, फ्रेंड लिखना है यहाँ पे। तो लेट्स कॉपी पेस्ट, एंटर एज एंड नेम, से फॉर एग्जांपल तौकीर, जो स्पेलिंग, व्हाट इज योर एज? 20 है, so 20 डेटा ऑब्जेक्ट नेम तौकीर एज 20 आ गया ना, परफेक्ट। सो अब जाके जो है आपकी क्लास के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारे प्रिंट भी हो रहे हैं और सारे सीन भी हो रहे हैं। सो दैट मींस if you have want this extraction and insertion operator to be used with your own class, then you have to overload it and tell it कि भाई आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें o stream और I stream का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और जो भी चीजें आपके क्लास के अंदर हैं वो इस आउट जो मैंने वैल्यू बनाया
उसके अंदर लोड करनी है, उसको रिटर्न करो। इस तरीके से जो भी चीजें आपको लेनी है क्लास के लिए वो ले लो कीबोर्ड से, डालो इनके अंदर और इनको रिटर्न करो। सिंपल एज डज मेक सेंस? समझ आया? Yes, sir. इसको प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा था, उतना भी नहीं, ठीक है ना? लिटिल बिट, नॉट दैट। इसको आप करेंगे काम, वॉच दिस वीडियो एंड राइट दिस कोड आल्सो। कंट्रोल ए, copy this, let's put it in a telegram. Hopefully you got it. Okay, control V. Okay, that's all for today, huh? Okay, and this